اگر آپ کی آواز آئے گی تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر مجھے یہ کہنا تھا، آپ اہل حدیث علماء یہ کہتے ہیں کہ یزید قتل حسین میں شامل نہیں ہے. آپ باقاعدہ آپ رحمہ اللہ کہتے ہیں، آپ نے کفایت اللہ صاحب نے کتاب بھی لکھی ہے یزید بن معاویہ دفاع میں، آپ دفاع کرتے ہیں. آپ اتنا تو مانتے ہیں نا، آپ کے یہاں تک تو تحقیق ہے نا کہ امام حسین اور ان کا کنبہ مظلومانہ قتل ہوئے، بے گناہ شہید کیا گیا انہیں کربلا کے میدان میں، اتنا تو مانتے ہیں نا؟ یہاں تک تو تحقیق ہے نا آپ کی؟ بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ یقیناً حسین رضی اللہ، نہیں سنیے اس میں کوئی شک نہیں ہے. چاہے حسین رضی اللہ، بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ کا قاتل یا طلحہ رضی اللہ عنہ کا قاتل یا علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا یا عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا یا حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا، ان سب سے ہم بری ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا جن لوگوں نے ان شخصیات کا خون بہایا ہے. یعنی طلحہ، زبیر، عمار، علی، حسین رضی اللہ عنہم، ان تمام صحابہ کو مظلوماً قتل کیا گیا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کر لیجیے. ان تمام صحابہ کرام کو جن لوگوں نے قتل کیا وہ ظالم ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم دے گا. ہم فیصلہ نہیں کرتے، ہم کو جہنمی نہیں کہتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی بات نقل کر رہا ہوں کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ یقیناً ان شخصیات کو مظلومانہ طور پہ قتل کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس قتل کی ذمہ داری اس پر ڈال دیں جس کا اس میں ہاتھ نہیں ہے. جن لوگوں نے قتل کیا ان کو آپ جو چاہے کہیں، ہم کو قاتلین سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. مسئلہ اختلاف کیا ہے وہ آپ کو سمجھنا چاہیے. اختلاف یہ نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل اچھے ہیں برے ہیں، اختلاف یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں کون. سمجھ رہے؟ حسین رضی اللہ عنہ کے، پہلے بات سن لیجیے، حسین رضی اللہ عنہ کے جن لوگوں نے بھی قتل کیا ہے حسین رضی اللہ عنہ کو یا اہل بیت میں سے کسی کو یا صحابہ کو، ان کے ساتھ ہماری کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی بھی ہمدردی نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ یہ قاتل ہے کون. جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے، ان کے قاتلین سے کسی کو ایک منٹ رکو پہلے بات، اختلاف کیا وہ پہلے سمجھو. جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اختلاف کیا، ان کے قاتلین سے کسی کو ہمدردی نہیں ہے، لیکن ایک طبقہ آج یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ سارے صحابہ کرام تھے، وہ ملوث تھے، انہوں نے جا کے قتل کر دیا. ہاں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، صحابہ کرام نے قتل نہیں کیا، وہ تو سبائی لوگ تھے، وہ تو کچھ کوفی لوگ تھے، ان لوگوں نے جا کے قتل کیا، کسی ایک بھی صحابی کا ہاتھ نہیں ہے. تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں کسی صحابی کا ہاتھ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو قاتلین عثمان سے کوئی ہمدردی ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے جو ریئل قاتلین ہیں ان کو جو کہنا ہے کہو، ہم کو کوئی دقت نہیں، لیکن صحابہ اس میں شامل نہیں ہے، صحابہ کے ہاتھ پہ ان کا خون نہیں ہے. ایسے مسئلہ حسین رضی اللہ عنہ کا ہے کہ ان کے قاتلین کو آپ کو جو کہنا ہے کوئی دقت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے والے، ان کو شہید کرنے والے، ان کا خون یزید کے ہاتھ پر نہیں ہے، یزید اس کا ذمہ دار نہیں ہے. جی آپ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں بھی وہی کہہ رہا ہوں سر. آپ مانتے ہیں نا، آپ جو کوئی بھی ہو، امام حسین کا قتل جس نے بھی کیا، وہ جو کوئی بھی ہو اس پر ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. ان کا مظلومانہ قتل ہوا، وہ شہید ہوئے، اتنا تو مانتے ہیں نا آپ؟ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ ہاں، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں امام حسین کے جو بھی امام حسین کو اور ان کے کنبے کو جنہوں نے بھی قتل کیا، جو بھی تھے، جن کی بھی سازش تھی، جن کا بھی ہاتھ تھا، جس نے بھی حکم دیا، وہ جو کوئی بھی تھے، کیا آپ اتنا جملہ ادا کر سکتے ہیں کہ قتل حسین میں جو بھی شامل تھا اس پہ اللہ کی لعنت؟ ایک بار نہیں 10 بار کہہ سکتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کو جس نے قتل کیا اس پہ اللہ کی لعنت ہو. ہم کیوں نہیں کہیں گے جبکہ اہل بیت میں رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک منٹ سنیے، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ جن لوگوں نے قتل کیا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، لیکن ہم یزید کو نہیں کر سکتے. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ اتنا جملہ ادا کر سکتے ہیں جو بھی قتل حسین میں جو بھی شامل تھا، نہیں آپ سنیے، قتل حسین میں جو بھی شامل تھا اس پہ اللہ کی لعنت، کیا آپ اتنا کہہ سکتے ہیں؟ جو بھی شامل تھا اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت. جی چلیے الحمدللہ، مجھے سکون مل گیا، دل پہ ٹھنڈک پڑ گئی، آپ کی طرف سے لعنت پڑ گئی، بنا نام لیے یزید اور اس کے خاندان پہ. چلیے
आप हजरत उस्मान के बारे में आप बोलते हैं कि हजरत उस्मान के कत्ल में जो शरीक था उस पे लानत बराबर हो जाए ना। हाँ सही बात है। हाँ, मसला मालिक अश्तर वगैरह भी है ना, बराबर हो जाए। हाँ, बोलिए आप हजरत ये उस्मान के उस्मान रज़ी कातिलीन, के हाँ जो भी शरीक बराबर हो जाए, हम लोगों के दिल को भी सुकून मिल जाए। मालिक अस्तर का हम नाम भी नहीं लेते। आप इतना कहिए कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल में जो लोग शरीक थे, जो लोग साजिशी थे, सब पर अल्लाह ताला की लानत। बोलिए। अगर उनका कत्ल मजलूमाना हुआ है, बेगुनाह कत्ल हुआ है तो लानत है। और अल्लाह अल्लाह अच्छा, अकबर। आप यानी उस्मान बिन अफ़्फ़ान साहब का कत्ल मजलूमाना नहीं हुआ। स्टूडेंट मैं क्या वो कह रहा अल्लाह के हूँ, बंदे, ये उनका देखो कत्ल, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत मजलूमाना नहीं है। हाँ अगर है मजलूमाना अब तो आया ना अल्लाह चेहरा का सामने। उनके कातिलों पे लानत है अब क्या? आया ना, सही बात है। अब अच्छा, निकल के आया अब अंदर आया बाहर। ये। अब नहीं, अंदर हमने फूटा, क्या सुना है तारीख में, अब अंदर फूटा। हमने क्या राज़ी सुना है तारीख में, हजरत उस्मान ने बहुत अकरबा आसानी परवरी से की ये थी। बंदा जा रहा था दिल का सुकून हासिल करके। सुनिए, हमने क्या सुना है तारीख में, अब हजरत जो उस्मान है ने अल्लाह अकरबा परवरी की बताइए। थी। चल बस वो समझ में आ गया आपका अंदर का, वो जो आप पर्दा इस पे डाल देते ना गलाजत पे, वो गलाजत का पर्दा उड़ गया। हजरत अच्छा है वो, उस्मान आप शहीद हुए थे एक्सपोज हो अपने, गए, आप एक्सपोज हो गए। नहीं खत्म है अब इसके बस की बात नहीं। चलो हो गया भाई, हो गया। उस्मान बिन वो बस अफ़्फ़ान आपका ढक्कन खोलना था, बदबू आ गई। ये Continue कितनी रहे। खतरनाक बात है ये बंदा जो बोल करके गए। इस पर इंशाअल्लाह हम लोग बात करेंगे कि मतलब हजरत उस्मान के कत्ल मजलूमाना हुआ है, ये तो इस पे कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। इवन हजरत अली को भी इस पे इख्तिलाफ नहीं था कि हजरत उस्मान का कत्ल मजलूमाना हुआ है। हजरत उस्मान तो बाहर लड़ने के लिए भी किसी से नहीं निकले थे, वो तो अपने घर के अंदर मौजूद थे। पूरी उम्मत कोई का आदमी इज्मा अगर मैदानी जंग में गया है तो कम से कम उसको इतना तो कसूरवार करार दे सकते हैं कि तुम निकली क्यों बाहर। हजरत उस्मान तो बाहर भी नहीं निकले थे, वो तो अपने घर के अंदर मौजूद थे। के अंदर थे भाई। एक इसमें आदमी को घर के अंदर बागियों ने पानी बंद करके घेर करके मार दिया, ये खबीस बोलता है कि मजलूमाना शहादत नहीं थी। बताओ इसको शक है, इतना बताइए। इतनी जुर्रत है, हाँ इतनी इसको जुर्रत है आकर के यहाँ पर बोल करके जा रहे कि और वो मजलूमाना। झूठी कहानियां बताएंगे कि काफिले हुसैन पे पानी बंद कर दिया गया, खाना ये सारी बातें झूठी। और सच्ची बात ये है कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु पर पानी बंद किया गया, बल्कि जो अज़वाजे मुताहरात खाना लेके आ रही थी, ये मालिक कश्तर कूफी दहशतगर्द ने उनको धक्का दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की किताब तारीख में और बहुत सारी कुतुबे रवायत में सही सनद के साथ मौजूद है कि जब उम्मुल मोमिनीन को इसने धक्का दिया और खाना नहीं पहुंचाने दिया तो वो गिरने लगी, तो कहा ये कल्ब कहा, कुत्ता कहा उन्होंने उसको, मालिक रश्तर को। फिर उन्होंने उनके घर में, उस्मान रज़ी के घर में रस्सी फेंका और रस्सी पे टांग के खाना वहां तक पहुंचाया। यानी इतना परेशान किया इन बदबख्तों ने उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, उनकी जो मदद करने वाले थे उनको। और ये बात कर रहे हैं कि नहीं वो मजलूमाना शहादत नहीं हुई। अगर उस्मान रज़ी की शहादत मजलूमाना नहीं तो फिर किसकी शहादत मजलूमाना है? अरे भाई, जिनकी शहादत की गवाही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो कि तुम शहीद होगे, एक आजमाइश के बाद शहादत होगी, जिनकी शहादत की पेशेन गोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, जिनके बारे में जिनको वसीयत की थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम मुनाफिकीन तुमसे तुम्हारा कुर्ता छीनना चाहेंगे और तुम मत छोड़ना, जिसकी शहादत की पेशेन गोई अल्लाह के रसूल ने की, उनके हिसाब से उनकी शहादत मजलूमाना नहीं थी। जो शाहिद, अगर हजरत उस्मान की शहादत मजलूमाना नहीं थी का मतलब क्या होता है कि वो लोग जो शहीद करने के लिए आए थे वो बरहक थे, नौजुबिल्ला। और वो बरहक थे और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनकी जो अशरे मुबश्शरा में से हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, उम्मत के खलीफा हैं, हजरत अली ने जिनके हाथ पर बैअत की है, हजरत हसन और हुसैन ने जिनके हाथ पर बैअत की है, आपके हिसाब से जिनकी शहादत की पेशेनगोई अल्लाह के रसूल ने फरमाई, वो बातिल पर थे और उनसे बगावत करने वाले हक पर थे। यानी आप देखें कि इस खबीस ने कैसे लोगों का जहन बिगाड़ा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं ना कि ये शुरुआत यजीद से करते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा सबूत इस बात का है किफायत कि ये शुरुआत यजीद से करते हैं, लेकिन ये यजीद तक नहीं रहते, ये पहुंचते हैं हजरत उस्मान तक। ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी तक भी नहीं रुकते, ये तो अबू बकर सिद्दीक तक पहुंच जाते। जाएंगे, यही अली मिर्जा है ना, यही अली मिर्जा है जिसने झूठ बोला कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर जब जुल्म, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जुल्म हो रहा था तो अबू बकर सिद्दीक ऐसे तमाशा देख रहे थे खड़े होकर, माज़अल्लाह। मतलब इस तरह की बातें जवाब देंगे इंशाल्लाह हम लोग, इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से इस तरह से बदगुमानी फैलाने की कोशिश की है। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु के बारे में भी, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु के बारे में, तो ये किसी पे नहीं रुकते, ये सीधा खलीफे अव्वल तक पहुंच जाते। बल्कि अभी शुरू में जिस क्लिप का मैंने जवाब दिया है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु को अल्लाह के रसूल ने सबसे अफजल कहा, सबसे महबूब कहा, तो इसको उसने काउंटर किया, छोटी हदीस लाके जो है उसके मुकाबले में पेश किया। तो ये कहां रुकते, यजीद पे नहीं रुकते।
ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलीन की कितनी, ये अली मिर्जा, ये मालिक अश्तर कूफी दहशतगर्द जिनको सहाबी उम्मुल मोमिनीन ने कुत्ता कहा है, सहाबा ने जालिम कहा है, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बददुआ दी है, ये बदबख्त खुद कहता था कि हमने इनको कत्ल किया है। इतने बड़े मबगूज और मनहूस और इस बदबख्त जिनके बारे में उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में सही रवायत आती है कि एक मरतबा आके मजलिस में बैठ गया था तो चेहरा देख के कह दिया कि ये कैसा बदबख्त है, इससे मुझे शर की बू आ रही है। यानी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी दौरे खिलाफत में कह दिया कि इससे शर की बू आ रही है। ऐसे अपने कातिल के बारे में भी कहा था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जो अबू लुलु फिरोज था ना, जिसने हमला किया था, एक बार बात करने गया तो जब वापस जाने लगा कहा ये क्या बोल के गया, मुझे इससे शर की बू आती है। तो ऐसे उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिल के बारे में भी कहा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। इतना बड़ा बदबख्त, इतना बड़ा दहशतगर्द मालिक अल-अश्तर, इसको लोग सर पे बिठा के फिरते और वो कहता है रहमहुल्लाह, इसको रहमहुल्लाह बोलते हैं, मालिक अल-अश्तर, जिसको मैं इब्ने ज़ियाद से भी बदतर समझता हूं। इब्ने ज़ियाद जो कूफा का गवर्नर था उससे भी बदतर शख्स है ये मालिक अश्तर, जिनको साहबा ने कुत्ता कहा, साहबियात ने, और जिसने इतना बड़ा अत्याचार किया कि जाके घर में खाना पानी बंद किया और जाके कत्ल किया, इतना बड़ा खून खराबा किया। बल्कि इब्ने अबी शैबा वगैरह की सही रवायत है ना कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद प्लान किया कि इसको मार देते तो खत्म कर देते, लेकिन हालात वैसे नहीं थे। ऐसे लोगों के लोग दिफा करते हैं, ऐसे लोगों को सर पे बैठाते हैं। देखिए सही बुखारी की रवायत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु जो अशरे मुबशरा में है और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जो बहनोई है, सही बुखारी की रवायत है, वो कहते हैं कूफियों के बारे में कि या अहलल कूफा, ए कूफियों, तुम लोगों ने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो किया ना, जो कत्ल किया है, अगर इसकी वजह से ये उहद पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाए ना, उसको हिल जाना चाहिए। इतना बड़ा जुल्म, जन्नती सहाबी उसको इतना बड़ा जुल्म मान रहे हैं, उस जुल्म के खिलाफ दो जन्नती सहाबा मैदान में उतर गए, तलहा जुबैर, उम्महातुल मोमिनीन में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खड़ी होंगी। जिस मजलूम सहाबी के खिलाफ ये मुबश्शिर बिल जन्नह सहाबा मैदान में आ गए और अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी उनके इस मौक़िफ़ के हिमायती हैं, खिलाफ भी नहीं, उस शख्सियत के बारे में ये जैसे लोग कहते हैं, ये तासुर पेश करते हैं कि मजलूम शहीद नहीं हुए, जबकि किसी एक बंदे को भी नहीं मारा, किसी पर भी हाथ नहीं उठाया, किसी को कत्ल नहीं किया उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने। और काफिले हुसैन का मामला, काफिले हुसैन, हम मानते हैं कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उनके अहले खाना, इनमें से जो लोग भी शहीद किए गए ये मजलूमन शहीद किए, लेकिन सही रवायात की रोशनी में आप देखेंगे तो इस काफिले में कूफी घुसे हुए थे। और सही रवायत की रोशनी में हमारे रिकॉर्ड में, हमारी मालूमात में सबसे पहले जो हमला हुआ इसी काफिले की तरफ से हमला हुआ, यानी इब्ने ज़ियाद की जो फौज थी उस पर सबसे पहले हमला करने वाला ये हुर बिन यजीद, जिनके बारे में, जिसके बहुत सारे लोग फजाइल बयान करते हैं। हुर बिन यजीद उस तरफ था, लेकिन इस तरफ सबसे पहले इसी बंदे ने मारा, सबसे पहले इसी बंदे ने 2 आदमी को कत्ल किया उस वक्त को। उसके बाद लड़ाई शुरू हुई है। उन लोगों ने अटैक नहीं किया, उन लोगों ने शुरुआत नहीं की, इधर से शुरुआत हुई। हम ये नहीं कहते कि हुसैन रज़ियल्लाहु ने शुरुआत की, नहीं, या अहले बैत ने, नहीं, वो लोग मजलूम थे, उन पर जुल्म इन लोगों ने ढाया है जो लोग साथ देने का, हिमायती बनने का दावा करते थे। इन लोगों ने सारा फितना फसाद किया। जंगे जमल भी इन लोगों ने जो है सहाबे कराम मिलना चाहते थे, फितना फसाद कर दिया। और ये वाकई करबला में भी हुसैन रज़ियल्लाहु सुलह करना चाहते थे, वो बैत करना चाहते थे, यजीद के बाद जाना चाहते थे, लेकिन इन बदमाशों ने सारा मामला खराब कर दिया, वहां पे लड़ाई छेड़ दिया। यहाँ पर एक चीज भाई, एक मनहज का फर्क भी वाज़ेह हुआ है कि जो लोग अहले बैत के नाम से आते हैं तो उनमें 2 बातें पाई जाती हैं, या तो रफ्जी होते हैं या रफ्ज पाया जाता है। लेकिन अभी यही जो गुफ्तगू हुई है, इस गुफ्तगू में जब हम लोगों से बात आई तो हमने साफ ऐलान कर दिया कि भी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल में जो भी शामिल है उस पे अल्लाह की लानत। हम सहाबा बोलते हैं और सहाबा अहले बैत दोनों बोलते हैं, और सहाबा बोलते हैं उसमें अहले बैत शामिल होते हैं। इससे हमारा मनहज क्लियर है कि जब हम सहाबा बोलते हैं तो हम अहले बैत के हुकूक को नजरअंदाज नहीं करते। हमारा मनहज यहाँ पे बिल्कुल बहुत साफ हो गया, सारे लोगों ने देखा। लेकिन जो लोग अहले बैत का नाम लेते हैं वो अहले बैत के पर्दे में उनका मकसद क्या है, सहाबा पे तान करना। ये मनहज भी इसी स्ट्रीम में लाइव एकदम सामने आया है खुल करके। तो ये सारे लोग देख लें और समझ लें कि मनाहिज में फर्क क्या है। अहले बैत का नाम लेकर के सहाबा पे तान करना एक ग्रोह है, और हम सहाबा का नाम लेते हैं मगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यानी हम कातिलीन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए कोई हमदर्दी नहीं रखते। तो ये मनाहिज का फर्क है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बेहतरीन दलील आज लास्ट में आई हो। तो सरफराज भाई ने टोका नहीं होता तो ठंडक पहुंचा के तो जा रहा होता, उनकी फरासत ने पता नहीं कैसे पहचान लिया ये कोई मारा हुआ है रब्ज का। बहरहाल अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर। नहीं, बहुत ही जबरदस्त शेख सरफराज की जो एंट्री हुई और जो शेख सरफराज ने सवाल उठाया, हकीकत में बहुत ही जबरदस्त सवाल था, और उस सवाल ने इस शख्स को जो है बेनकाब कर दिया, वरना तो ये जश्न मनाते हुए जा रहा था। एक और चीज मैं वाज़ेह कर दूं जैद भाई, ये बीच में आ गए थे ना मालिक अल-अश्तर की बात,
तो कुछ जी। बेवकूफ़ लोग ना इस शख्स को रावियाने हदीस में शुमार करते हैं कि हदीसों का रावी है। हालांकि पहली बात तो इस पे मजरू है, और दूसरी बात यह है कि इस बदनसीब की एक भी रिवायत सही नहीं। ये रावियाने हदीस में से नहीं है। इसने एक रिवायत बयान की है जिसमें सब को अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया। मैंने अकीदे के कई दकातरा से कांटेक्ट किया, राब्ता किया, और मैंने कहा कि सलफ में से कोई हवाला है जिसने ये कहा हो कि अल्लाह ताला भी सब करता है, यानी सब की निस्बत, यानी सब नहीं बुरा भला कहना, तो लफ्ज़ सब की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की गई हो, क्या सलफ में से किसी ने माना है? लेकिन किसी भी अकीदे के किसी भी दुक्तूर ने मुझे ऐसा कोई हवाला नहीं दिया। लेकिन इस बदबख्त ने जो रवायत बयान की है उसमें इसने कहा है सब की निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ जो है इसने कर दी है। उसके रवायत को कुछ लोग सही भी मानते हैं, लेकिन वो सही रवायत नहीं है। ये शख्स खुद जो है सिका नहीं है, और जो रवायत पेश कर रहा है उसका जो मतन है वो अहले सुन्नत वल जमात और अकीदे सलफ के मुत्तफका मौकिफ के खिलाफ है। इसलिए ये इसका रवायत अहादीस के बयान में कोई हिस्सा नहीं। इस बदबख्त ने कोई ऐसी हदीस बयान नहीं की है जो सही हो, जो मुनफरिद हो, यानी इसके अलावा कहीं ना मिलने वाली हो। सारी रवायतें अल्हम्दुलिल्लाह सिका रवात ने बयान की है। इस बंदे का कोई हिस्सा नहीं है अहादीस की रवायत में। ये जो लोग जो है आर्टिकल या मजमून का हवाला तलब करते हैं ना, तो हमारी वेबसाइट किफायतसनावली.com पे जाइए, ये सारे आर्टिकल वहाँ पे हमने अपलोड कर दें, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं मुख्तसर कभी कभी हवाला देता हूँ, तो वहाँ पे जाएंगे तो ये सारे मज़ामीन तफसील के साथ आपको मिलेंगे। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की कैटेगरी, यानी दिफाए सहाबा कैटेगरी खोलिए, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम क्लिक कीजिए, तो आपको सारे मज़ामीन इंशाल्लाह एक साथ मिलेंगे। और अगर कोई दिक्कत है, कोई मजमून आपको नहीं मिल रहा है, तो आप वेबसाइट पे दिया हुआ है, मेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया